So today we'll discuss, or in this class we will discuss something called determination of mechanical and structural properties of films. Okay. These mechanical and other structure. Mechanical properties, if you say mechanical properties, the first thing that comes to mind is hardness, H, E stands for modulus, and there is one more term which I am just writing the symbol K1C. K1C. It is called the fracture toughness. Apart from that, we will also study ADH, adhesion or adhesive strength, dummy, wear and loss of material as we scratch or as we do some sort of abrasion. So W stands for wear. And when I say ADH, I mean the adhesion. कितना अच्छी तरह से कोटिंग अटैच हुआ है सबस्ट्रेट से, उसका स्ट्रेंथ क्या है. They are the following things which we try to find out when we have posed up film. Structural properties में we first try to find out. अच्छा, इसके साथ you also associate stress and RE. RE stands for average roughness. स्ट्रक्चरल में हम लोग बेसिक स्टडी करते हैं कि बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड्स बने हैं और कौन सा फेज we mean basically you can call it the crystal structure. The question is, ये जो सारे पैरामीटर्स में मिलते हैं, they are also determined
for the case of very normal material. In normal material में भी हम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ एडिसिव स्ट्रेंथ को छोड़ के. So we will first try to understand what are these in the perspective of a normal material. Then हम लोग इसका एक स्पेशल केस, in the case of films को हम उसके साथ कंपेयर करेंगे. So let us start with something called an X-ray diffraction. Or in short, let's call it an XRD. तुम लोग जब हड्डी टूटता है तब एक्सरे कराते हो, ठीक है? There are two types of X-rays. One is called continuous X-rays. One is called characteristic X-rays. Continuous stress correct. जो मेडिकल डायग्नोसिस के लिए जो यूज होता है दैट इज कंटिन्यूअस एक्सरेज, मेडिकल डायग्नोसिस. लेकिन जो हम लोग नॉर्मल मटेरियल साइंस में फेज आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, तो इसका क्या यूपीएस ऑन नहीं कर रहे हैं. चलिए, जो फेज आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज. कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में जैसे तुम लोग पढ़ा होगा, अल्फा बीटा न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ वी हैव गॉट डिफरेंट एटॉमिक शेल्स, अल्फा बीटा. वहाँ पर काम चल रहा है, ठीक है. So this is used for medical diagnosis, med, and this is used for XRD, identification of the phases, X-ray diffraction. अच्छा, यहाँ पे diffraction word का मतलब होता है, diffraction word is basically scattering of light when you have an obstruction on the side of the wavelength of X-ray.
scattered. When you have an obstruction, जिसका कि साइज है जो लाइट यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि आफ्टर स्कैटरिंग, scattered light, or I shouldn't call it as light, I should call it scattered electromagnetic light, it undergoes interference. Either it is a constructive interference or it is a destructive interference. We use the constructive interference of X-rays in XRD. तो यहाँ पे जो लैम्डा आप लोग यूज कर रहे हैं, लैम्डा बेसिकली वेवलेंथ है, वेवलेंथ। और XRD के केस में लैम्डा इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ nanometers. Nanometer of that 10 to the power minus 9 meters. So why we are using it as for the case of X-rays? Because in the case of the atomic spacing जो होता है न्यूक्लियर का, वो इस रेंज में होता है. So the obstruction of the whatever we are plotting it, this matches with the wavelength of the X-rays. That is why we are using XRD for phase angle. Now, इसमें क्या होता है कि you have a nucleus, again how to produce the X-ray. If you again look, एक nucleus होता है और यहाँ पे you have the different shells. They are called K alpha. Beta, क्या करता है विद हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन वेरी हाई एनर्जी, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। मान लो ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो वी मेक इट गो आउट ऑफ द प्लेस। इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो वेकेंट स्पेस जो बना, नेक्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन कम्स एंड ऑक्युपाइज द स्पेस, और जो एनर्जी डिफरेंस दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस था, that gets ejected out as X-ray. So electron being dislodged from innermost shells, and to compensate for the loss of electron, there is a jump of electron from the next
shell to that position, and in that process it has to, for the conservation of energy, it has to emit an X-ray, it has to emit electromagnetic wave that comes out as an X-ray. तो इसीलिए जो एक्सरेज का सोर्स लोग देखोगे जब किसी भी XRD इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे एक लैब है गीत बोल के, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन एंड एफिशिएंट एनर्जी टेक्नोलॉजी, एकदम ग्राउंड फ्लोर में जो मेटलर्जी का जो ऑफिस है ना, उससे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर उसके एकदम कॉर्नर में जाए, वहाँ पे अगर टाइम मिले तो जाके वहाँ पे XRD है। तो XRD का जो सोर्स है विच हैज प्रोड्यूसिंग एक्सरे, सब देखा जाता है, इट इज कॉपर, मेनली कॉपर एंड मैग्नीशियम। कॉपर ज़्यादा यूज होता है, इट इज कॉल्ड कॉपर K alpha। Copper K alpha because it has been removed from this energy level। और इसका जो वेवलेंथ होता है, आई थिंक इट्स 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसको ये एक्चुअली एंगस्ट्रॉम तो -10 पता है। Armstrong means 10 to the power -10. Nanometers mean 10 to the power -9. It is a picometer, 10 to the power -12. It is a femtometer, 10 to the power minus, femtometer or any other thing, it's not -15. Femto word used, it's not meter. P, pico, F for femto and A for atom, it's for minus। इसके नीचे हम लोग यूज़ नहीं करते बिकॉज जितना भी इंस्ट्रूमेंट हम लोगों के पास है, सबसे प्रिसीशन एक इंस्ट्रूमेंट हम लोग यहीं तक ही जा पाए, नॉट दिस वन, इट्स सम अदर इंस्ट्रूमेंट। सो यहाँ पे 1 to the power 54 Armstrong, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। व्हाई वी आर यूजिंग इट बिकॉज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स, जो डी है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इसका मतलब क्या है? इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स, इसका जो डायमेंशन है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे, दैट इज Armstrong। दैट इज व्हाई देयर इज अ चांस ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ब्रैग्स लॉ पढ़ा होगा, Bragg's law is Bragg's law। Have you heard about this Bragg's law? तो हम लोग देखते हैं कि एक काम कैसे करता है, how does this X-ray works? So again you have atoms like this, layer of atoms, ठीक है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये एक लेयर, मतलब इट इज एक्चुअली अ प्लेन, इसके पीछे भी एटम्स है, दिस इज एक्चुअली प्लेन ऑफ एटम्स, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस take it as D। अभी हम लोग एक्सरे इंट्रोड्यूस करते हैं।
पहले वाला जो लेयर है वहाँ से एक्सरे जाके स्कैटर आया, स्कैटर। सेकेंड वाला जो लेयर है वहाँ से भी सेम थिंग। नहीं, अभी तक सेकेंड में हम लोग आएंगे, स्कैटरिंग हुआ। ये जो दो स्कैटर्ड ये है, दे अंडरगो इंटरफेरेंस। इन दोनों के बीच अभी इंटरफेरेंस। दो टाइप का इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो कंडीशन है, इसका कंडीशन है the optical, let's say the path difference मतलब दोनों रे के बीच में जो डिफरेंस है, पाथ, that should be n into lambda. n is a number, should be integral multiples of the wave. अभी मुझको जानना पड़ेगा ये पाथ डिफरेंस जो है वो क्या है। So if I consider this angle as theta, so path difference is this extra path traveled by the second ray। सेकेंड रे ने ये वाला एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल किया है, ये प्लस ये जो है दिस इज, इफ इट इज डी एंड इफ इट इज थीटा देन दिस इज डी साइन थीटा। एक साइड इससे दो बार डी साइन थीटा ट्रैवल किया है, पाथ डिफरेंस इज 2 डी साइन थीटा is equal to n. This is the Bragg's law. This is the Bragg's law. Condition of constructive interference. और ये जो n है, n is usually the order of diffraction. n का हम लोग usually 1 लेके चलते हैं। n1 मतलब the first two layers. This is layer number 1. The first two planes. 1, 2, this is 3. तो n का मतलब है आई एम टेकिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन 1 and 2। हम लोग 1 और 3 भी दे सकते थे, लेकिन क्या होता है कि उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। बेस्ट इंटेंसिटी दैट वी ऑब्टेन इज फ्रॉम द फर्स्ट रीजन, दैट इज व्हाई n इज यूजुअली टेकन एज 1। अच्छा, ये तो हो गया नॉर्मल बिजनेस के केस। नाउ द सेम थिंग इससे हमको व्हाट डू एक्चुअली गेट इट, वी एक्चुअली गेट दिस टर्म, दिस d। व्हाट इज d? d is interplanar spacing, not interatomic. So this is one plane, this is one plane, so d is the interplanar
नहीं, वही फ्रिंजेस की हम लोग बात कर रहे हैं. अच्छा, ओके, सिंस यू हैव आस्क्ड, Long's double slit experiment में क्या होता है? We have two sources. इसकी बात कर रहे हो ना? इसी बात कर रहे हो ना? So we are taking the maximum movements. ये this is not n is equal to 1 जो मैं अभी बोल रहा था. For n is equal to 1 और जो दूसरे साइड्स जो है that is for n is equal to 2, जो उसका इंटेंसिटी बहुत कम हो जाता है. अच्छा, now the question is, ये तो नॉर्मल मेटल के केस में, नॉर्मल कोई भी मटेरियल के केस में हो गया. जब मुझे सबस्ट्रेट का थिन फिल्म ना हर एक कैरेक्टराइजेशन में जो बेसिक प्राइमरी जो बॉटलनेक या प्रॉब्लम आता है कि हाउ टू सेपरेट द फिल्म फ्रॉम द सबस्ट्रेट. जैसे कि ठीक है, चलो हार्डनेस, जो इंडेंटेशन हम लोग जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बात किया, तो इंडेंटेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं? हम लोग ग्लूकोज से कर रहे हैं. लेकिन जो इंडेंटेशन का जो वैल्यू, जो हार्डनेस का वैल्यू दैट वी आर गेटिंग, इट इज़ नॉट ऑफ द फिल्म ओनली, इट इज़ अ कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ द फिल्म एज द सबस्ट्रेट. ठीक है, जैसे मान लो there is a rock, right? Rock is a very hard thing. Again, if you put the rock on a cloth, जैसे कपड़ा ऐसे इसके कपड़ा ऐसे अगर उसको तुम रॉक फिल, initially if you are pushing the rock normal, it is very hard. if cloth के ऊपर rock push करोगे तो अंदर चला जाएगा. That is when you are pushing the rock, you are getting the hardness of the rock as well as the cloth. The same thing is applicable here. यहाँ पे जो भी कैरेक्टराइजेशन हम लोग करते हैं, तो we get a combined effect, film और substrate पर. उसको हम लोग बोलते हैं composite hardness. As for example, if we do an indentation test and we get a hardness H, we call it as a composite hardness. It is actually equal to the volume fraction of the film. कोटिंग भी बोलते हैं इसको, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द कोटिंग. इसका हार्डनेस प्लस द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द सबस्ट्रेट. इसका हार्डनेस SC. S is for substrate and C is for coating. लेकिन मुझे अगर सिर्फ कोटिंग का निकालना है तो उसके लिए प्रोसेस अलग है. मुझे पहला आप एक्साइटिंग को, तो एक्साइटिंग में हम लोगों ने क्रिकेट लोग या तो लेग ग्लांस बोल के देयर इज अ शॉट फ्लिक या लेग ग्लांस. व्हाट डू ऐसे करते हैं ना स्लाइड. उसी तरह से for combination of XRD of a film, there is something called GI XRD, especially for films. Sorry, GA XRD. GXRD or SAXRD. GA stands for glancing angle और SA stands for small angle. A stands for angle, this is for glancing. और इसको small angle. स्मॉल क्यों बोलते हैं? बिकॉज नॉर्मल XRD जो थीटा है दैट वैलीज ये जो थीटा ये वाला
varies between 20 to 80 degrees. Normally 20 degree to 80 degree. लेकिन क्लासिक एंगल में इस 5 to मतलब रेंज में होगा लेस देन 20, 5 to 15 मान लीजिए 5 to 15 डिग्रीज में वी आर गेटिंग स्मॉल एंगल। इसका मतलब ये जो इसका इंसिडेंट है इन द केस ऑफ फिल्म, ये इंसिडेंट ऐसे नहीं होता, ये कुछ भी एंगल बहुत कम हो जाता है, मतलब इट्स लाइक दिस ऐसे वेरी स्मॉल एंगल, क्योंकि इससे का पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है। स्मॉल एंगल देंगे तो बीच विल बी कन्फाइंड टू द सरफेस या फिर फिल्म, इसीलिए इसको स्मॉल एंगल एक्सरेटिंग कहा जाता है या फिर ग्लास एंगल। Okay, now we come to the hardness problem. Hardness में भी same problem है। मैकेनिकल में so the solution of that is if we could use a very small but sharp so that our indentation remains confined in the film. ठीक है, यूजुअली बोला जाता है कि मेरा अगर थिकनेस इज टी, ये तुम्हारा पूरा पूरा का पूरा फिल्म से इसका थिकनेस है मान लो T. So if I am using an indent, ठीक है, मैं इंडेंट यूज करता हूँ, और वो यहाँ पे इंडेंट बना रहा है। तो जब तक so this has also got a height, इसका भी हाइट है h penetration। तो जब तक height is less than equal to t by 10, तब तक I will be getting the property of the film। जैसे ये मतलब अगर 505 नैनोमीटर है हमारा फिल्म का थिकनेस, तो मेरा अगर इंडेंटेशन का जो डेप्थ है एच है वो अगर 50 नैनोमीटर तक मुझे वैल्यू मिल जाता है, देन आई कैन से दैट इट इज द वैल्यू ऑफ द फिल्म। एज सून एज इट क्रॉसेस 50 आई विल बी गेटिंग सबस्ट्रेट इफेक्ट।
substrate effect. So for that I shall be using indenter which has got two properties. एक प्रॉपर्टी है वो छोटा होना चाहिए जिससे कि मेरा डेप्थ कम हो, लेकिन व्हाट इज द रीज़न ये शार्प होना चाहिए। क्या कोई इसका आंसर मुझको दे सकता है? छोटा होना चाहिए तो समझ में आ गया। अब देखते हैं एक स्मॉलर, वाई शार्पर? हाँ, यस एग्जैक्टली, बिकॉज उसका जो बेसिकली व्हाट मैटर्स इज दैट द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मान लो मैं इसके ये वाला रीजन के ऊपर अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करूँ, इसकी जो टिप है, ये टिप बेसिकली ऐसे है ना एट सेंटर। तो मैं अगर साइज इसका छोटा कर देता हूँ तो इट इज़ द लोड बाय द एरिया। मैं कितना स्ट्रेस दे रहा है, दैट इज अ लोड बाय द एरिया। तो मैं अगर इसका साइज छोटा कर रहा हूँ, सो आई हैव टू मेक इट शार्पर टू प्रोवाइड द सेम अमाउंट ऑफ प्लास्टिक इंफॉर्मेशन। सिर्फ साइज छोटा करने से काम नहीं चलेगा। साइज में छोटा करके मानो मेरा ये वाला बड़ा साइज था, ऐसे बना रहे हो तो उससे तो अंदर जाएगा ही नहीं। ये ऐसे बनाने से काम नहीं चलेगा, मुझको इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी स्मॉल एंड इट हैज़ टू बी शार्प, बिकॉज देन आई एम रिड्यूसिंग। इसका क्या है, इसका एरिया मैं कम कर रहा हूँ, इसका एरिया कम कर रहा हूँ। एरिया इवन इफ आई एम रिड्यूसिंग द एरिया, द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज द सेम। तो दिस टाइप ऑफ इंडेंटर जो थिन फिल्म में स्पेशली इंडेंटेशन बिगर्स और रॉकवेल तो नॉर्मल मटेरियल में होता है। इस टाइप के इंडेंटेशन को हम लोग बोलते हैं नैरो इंडेंटेशन। और जो इंडेंटर का शेप होता है, दैट शेप इज कॉल्ड, इज द शेप ऑफ अ थ्री साइडेड पिरामिड। थ्री साइड पिरामिड कुछ इस तरीके से। थ्री मतलब समझ रहे हो कैसे ड्रॉ किया? सो फ्यू इंडेंट उसके इंडेंट शेप ऐसे ट्रायंगल में होता है, इस तरीके का इंडेंट। इसका नाम है, इसको बर्कोविश इंडेंट। Butterfish. थोड़ा सा different subject किया, मतलब the same thing but in a different epitaxial growth. You know what is an epitaxial growth? This is one more. So whenever there is an epitaxial growth, that means you have atoms falling
and then they finally, by adjusting themselves, they come to an equilibrium. So consider one single atom. ये तुम्हारा सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर मान लो ऐसा एक एटम मिला। इस एटम का एक सरफेस, एक फ्री एनर्जी, सरफेस टेंशन का स्टूडेंट वाला तो लोगों ने यंग्स लॉ पढ़ा होगा, ड्रॉप इट यंग्स लॉ। सो देयर इज सिग्मा, इट मींस द सरफेस एनर्जी per unit area or surface tension per unit length. दोनों का डायमेंशन सेम ही आएगा, लेंथ टू एरिया न्यूटन पर मीटर है। दैट इज न्यूटन पर मीटर। तो ये भी न्यूटन पर मीटर, and it is also Newton meter by meter square, so it is also Newton. There is a thing called sigma. अच्छा, इस केस में there are 3 sigmas. एक है of the एक है ऑफ द सरफेस, ये मैं इसको बोल रहा हूँ सिग्मा एस। दूसरा है ऑफ द फिल्म, सिग्मा एफ। तीसरा है ऑफ द इंटरफेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिल्म और सबस्ट्रेट के बीच का डिस्टेंस। ऐसे बोलते हैं कि देयर इज अ सेइंग, फिलोसॉफिकल सेइंग है कि गॉड मेड मैटर, ठीक है, गॉड मेड मैटर एंड द डेविल made the surface ये एक फेमस साइंटिस्ट ने कहा था, पाउली का नाम सुना हो? पॉलीज इंस्टीट्यूशन प्रिंसिपल, वुल्फगैंग पाउली, डब्ल्यू पाउली, उन्होंने ये कहा। ठीक है, फिर इसके साथ और एक थिंग जो ऐड कर सकते हो, एंड the devil sent these its, these were the correct its demons at the एक फिल्म की प्रॉपर्टी कैसे होगी, वो कितना एडहेयर करेगा, वो फिट करेगा उसका इंटरफेस और सरफेस इंटरफेस के साथ कैसा कॉम्बिनेशन, क्योंकि आंखों से दिखता नहीं है। आंखों से क्या क्या देख सकते हैं? बल्ब को देख सकते हैं, बिफोर द डिपोजिशन ऑफ द फिल्म लोग फिल्म को देख सकते हैं, लेकिन फिल्म और बल्ब के बीच में चल क्या रहा है, सी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो इस साइड में और एक वेक्टर है, इस सब में बोलते हैं सिग्मा आई। और इनके बीच मान लो एक एंगल है थीटा। तो इफ यू कुड
write the equation, we can write sigma s is equal to sigma f cos theta plus sigma s is equal to sigma f cos theta plus sigma. तो ये एपिटैक्शियल जो ग्रोथ है, जैसे फिर दिया ये जो तीन वैल्यू है, इन तीन वैल्यू के ऊपर बेस करके वी कैन हैव बेसिकली 3 + 5 टाइप्स ऑफ ग्रोथ. सो देयर आर 3 क्लासिकल ग्रोथ्स, growth modes, कौन सी क्लासिकल ग्रोथ मोड्स हैं? एक है लेयर बाय लेयर. Layer by layer. Second is island. Okay, second one. First is layer by layer. Second is island, and the third one is layer. कोई भी थिन फिल्म का आपको उठा के देख लो, दे विल टॉक अबाउट दीज थ्री. लेकिन इसके अलावा भी जो होता है दैट इज नॉट वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड, लेकिन स्पेशल ओकेजन्स पे होता है. दे आर कॉल्ड स्टेप ग्रोथ, ये दोनों भी होते हैं. लेकिन बेसिक क्लासिकली ये एक्चुअली इनका कुछ कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन क्लासिकली यही तीन ग्रुप्स को ग्रुप किया जाता है. यही तीन ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया जाता है. तो इन तीनों में देयर इज अ डिफरेंस. लेयर ग्रोथ मतलब द एटम्स आर कमिंग एंड दे आर फॉर्मिंग लेयर. जैसे आया एक लेयर बनाया ऐसा, उसके बाद और एक लेयर बनाया ऐसा. ठीक है, दिस लेयर बाय लेयर. If there is a layer by layer growth taking place, that means sigma s is less than sigma f cos theta plus sigma I. The sigma surface is dominant. सेकेंड वाला केस में इस केस में सिग्मा एस सॉरी बीटा ये होगा लेस देन इक्वल टू
यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों में से भारी कौन सा हो रहा है. इफ इट इज सरफेस मतलब इस साइड में देन इट विल सरफेस की तरफ सारे आइटम्स को ले जाएंगे. तो यहाँ पे कोहेसिव एनर्जी. और द थर्ड वन इज लेयर प्लस आयलन. लेयर प्लस आयलन में क्या होता है कि पहले लेयर बनता है, उसके बाद एज सुन एज द सरफेस एनर्जी इंक्रीजेस इट ऑटोमेटिकली फॉर्म्स विद आयलन. सो इनिशियली ऐसे होगा. इनिशियली ऐसे बनेगा, ऐसे बना, एक बना, दो बना. फिर देखता हूँ कि आफ्टर द थर्ड वन और सेकेंड वन अचानक इस कंडीशन से हम लोग इस कंडीशन में आ गए. तो इट विल अगेन स्टार्ट टू फॉर्म लेयर. अच्छा, कलम ग्रुप स्टेट ग्रुप इज लाइक दिस. सबसे इस तरह से स्टेट ग्रुप बनता है एंड द कलम ग्रुप इज कलम ग्रोथ. स्पेशल ओकेशंस पे कलम ग्रोथ होता है. बेसिकली दिस थ्री आर द मेन एंड स्टेप एंड कलम ग्रोथ. तो इसके अलग अलग नाम हैं बेस्ड अपॉन द साइंटिस्ट दैट दे हैव क्रिएटेड. जैसे सो वी हैव लेयर बाय लेयर ग्रोथ. Have island, and we have layer plus island. इसको बोलते हैं FM PW and SK. इसका नेम भी याद रखो तो चलेगा. जस्ट साइंटिस्ट के नाम पे FM स्टैंड्स फॉर फ्रैंक वैन डर मेयर. स्पेलिंग मेरा थोड़ा गलत हो सकता है. क्या देखा. VW is Walmart River. And SK is Stransky रशियन. लास्ट वाला रशियन है. ये वाला शायद डच होगा और सेकंड वाला जर्मन. पता नहीं कैसे. लास्ट वाला रशियन, ये पहला तो मुझे पता. ये तीन साइंटिस्ट के नाम है. इनको याद नहीं भी रहेगा तो दिस इज इम्पोर्टेंट. लेयर बाय लेयर आइलैंड एंड लेयर प्लस आइलैंड. उसको याद रखना. ठीक है. काफ़ी है. नेक्स्ट वीक मेरा क्लास नहीं होगा. सो वी मीट ऑन 27th Monday.